ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالقیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم NCERT کی کلاس 10 سبجیکٹ اردو کا سبق نمبر 3 نظم نیکی اور بدی کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعہ ہم نظم نیکی اور بدی کے شاعر نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ادبی خدمات کا مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد نظم اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور آخر میں سوال و جواب پیش کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سبق نیکی اور بدی۔ اس نظم نیکی اور بدی کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ان کی پیدائش 1740 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر تھے، یعنی کہ نذیر عوام سے منسوب اور عام لوگوں سے جڑے ہوئے جو موضوعات ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے اور ان کی جو شاعری ہے، انہوں نے جو نظمیں اشعار کہے ہیں ان میں ہندوستان کا جو ماحول ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے، یعنی کیسا بھی موضوع ہو اس کو سیدھی سادی اور سادہ زبان میں عام لوگوں کی فہم میں، عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا۔ ان کے پاس میں یہ جو الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا، اسی وجہ سے جس سے وہ اپنی بات کو بہترین انداز میں سمجھا سکتے تھے۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں جیسا موقع ہو اور جیسا موضوع ہو اسی کے مطابق وہ الفاظ کا بہت ہی بہترین استعمال کرتے تھے۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے، یعنی ان کا جو کلام ہے وہ اثر کرنے والا ہے۔ روٹیاں، بنجارہ نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کنہیا کا بالپن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں۔ یہ اردو کے جانے مانے بہت بڑے ایک شاعر ہیں۔ آئیے اب ہم ان کی نظم نیکی اور بدی کو پڑھتے ہیں۔ نظم نیکی اور بدی کی حیت، اس کے اسٹرکچر کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نظم نیکی اور بدی مسدس نظم ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصروں کے بند ہوں۔ ان 6 مصروں میں 4 ہم قافیہ یا ہم قافیہ ردیف ہوں، باقی مصرے یعنی کہ پانچواں مصرع یہ اور یہ 6واں مصرع اپنا الگ قافیہ یا قافیہ ردیف۔ قافیہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اشعار میں غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر بستی، سستی، بستی، پستی، پرستی اور بدستی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ بار بار اس نظم کے ہر ایک مصرے میں آ رہے ہیں، تو یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور ردیف ہوتے ہیں جو قافیہ کے بعد میں بار بار آتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیے سب میں یہاں پر ہے لکھا ہوا آ رہا ہے، تو یہ اس کے ردیف ہیں۔ اس نظم میں ایک غور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ اس نظم میں ناؤ، یا اور لہو جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے یہ الفاظ رائج تھے، آج کل ناؤ کو نام، یا کو یہاں، لہو کو لہو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نظم میں ایک لفظ ذبح بھی آیا ہے، اس کا صحیح تلفظ بے اور ہے پر جزم کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے،
यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। अदल परस्ती के माना है इंसाफ परस्ती। दस्त बदस्ती हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना। और सौदा के माने होते हैं व्यापार या बिजनेस। तशरीह। नज़म नेकी और बदी के पहले बंद में शायर कहता है कि मियाँ ये दुनिया जिसका नाम है, ये एक अलग ही तरह की बस्ती है। ये अमीरों और दौलतमंदों के लिए महंगी और गरीबों के लिए सस्ती है। इस दुनिया में लड़ाई झगड़े और फसाद होते रहते हैं और इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए अदालत लगती रहती है। जो जैसा करता है उसे उसका बदला मिल जाता है। अगर यहाँ कोई मस्त रहता है, दुनिया से बेखबर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई पस्त करे या गलत काम करे तो सब जगह उसकी थू थू हो जाती है। यहाँ जो जैसा करता है उसे अपने किए का बदला मिल जाता है। अल्लाह ताला के यहाँ कुछ देर और अंधेर नहीं है, वहाँ हर एक को अदल और इंसाफ मिलता है। जैसा करोगे उसका बदला हाथ के हाथ मिल जाएगा। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। नान एक किस्म की रोटी होती है। यह दूसरा बंद है, इसकी तशरीह हम देखते हैं। नज़्म नेकी और बदी के दूसरे बंद में शायर कहता है, जो औरों की इज्जत करेगा, यानी दूसरों की जो इज्जत करेगा उसको भी इज्जत मिलेगी। जो किसी को पान खिलाएगा तो बदले में उसे भी खाने को पान मिलेगा, और जो किसी को रोटी खिलाएगा तो उसे बदले में नान मिलेगी, यानी रोटी मिलेगी। दूसरों का नुकसान करोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, और अगर दूसरों के साथ एहसान और भलाई करोगे तो बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। जो जिसके साथ जैसा सलूक करेगा, जैसा रवैया रखेगा, उसको वैसा ही बदला मिलेगा। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको करनी है। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। यहाँ जैसी करनी है फिर वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। गर्क करना के माना है डुबोना। शमशीर तलवार, तबर कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, सना यानी भाला, नहरनी कहते हैं नाखून काटने का आला, और नश्तर जख्म चीरने का औजार। तशरीह। नेकी और बदी के तीसरे बंद में शायर कहता है, जो लोगों के काम बनाता है या जो लोगों के काम निकालता है तो उसके काम भी बन जाते हैं। जो दूसरों को डुबोएगा तो एक ना एक दिन वो भी डूब जाएगा, यानी जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करेगा एक दिन वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। यहाँ तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक, भाला, नश्तर,
नहरनी सब कुछ है, यानी तुम किसी को जैसा नुकसान पहुंचाओगे तुम्हारा भी वैसा ही नुकसान होगा, और तुम जैसा करोगे उसका बदला भी वैसा ही मिलेगा। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम जबह कर डाले हैं, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बाला के माने होते हैं ऊंचा और बुलंद। तशरीह, नेकी और बदी के चौथे बंद में शायर कहता है, जो औरों की इज्जत करेगा तो उसकी भी इज्जत होगी, और किसी को बेइज्जत करेंगे तो बदले में बेइज्जती मिलेगी। अगर किसी जालिम ने बग़ैर खता किए किसी मासूम को कत्ल कर डाला या मार डाला तो उस जालिम का भी एक ना एक दिन खात्मा हो जाएगा और उसका जुल्म मिट जाएगा, वो अपने किए कराए के अंजाम को पहुंच जाएगा। इसी के साथ इस नज़म की ये तशरीह पूरी होती है। इस सबक के सवालों के जवाब हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती कहा गया है? इसका जवाब है कि नज़म के पहले बंद में दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वह अपने किए का वैसा ही बदला पाता है। हाथ के हाथ सब मामला निमट जाता है। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। सवाल नंबर 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? जवाब, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा या बुरा सलूक करेंगे तो आपको उसका बदला यहीं दुनिया ही में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3, किसकी नाव पार उतरती है? जवाब, जो दूसरों की नाव को पार उतारते हैं तो उनकी भी नाव पार उतरती है। यानी इस दुनिया में जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी भी मुश्किल और परेशानी दूर हो जाती है। सवाल नंबर 4, जालिम को क्या बदला मिलता है? जवाब, जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता और परेशान करता है उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानी में मुब्तला होना पड़ता है। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसको अपने किए का वैसा ही बदला मिल जाता है। अहमद ने पढ़ाई की और इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उसे अपनी मेहनत का बदला मिल गया। बोल बाला होना, राशिद के 10वीं क्लास में अव्वल पोजीशन आने पर गांव में उसका बोलबाला हो गया, यानी उसकी शोहरत और तारीफ हुई। पार उतारना, किनारे लगाना, मुनासिब कोशिश से असलम इम्तहान में पास होकर पार उतर गया। मान रखना यानी इज्जत करना, अपने माँ बाप की बातों को मानकर उनका मान रखो, यानी उनकी इज्जत करो। खाली जगहों में इसम या फ़ैल भरिए। इसमें जो पहली खाली जगह है वो है ये दुनिया और तरह की, और इसकी खाली जगह में आपको भरना है बस्ती है। दूसरा, यहाँ हरदम झगड़े, खाली जगह में लिखना है उठते रहते हैं। तीसरा है सवाल, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। इसी के साथ यह सबक नज़म अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अब्दुल क़य्यूम अब आपसे रुखसत होता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।